And today we are going to start our new chapter and very exciting and interesting chapter number 14, some natural phenomena. So before starting this chapter, let's see some examples or some activity that related to natural phenomena. So have a look on the activity. So students, this is the first natural activity or natural event or natural phenomena that occur in the nature, and you have watched this one. So find out what is this, and this one is the next activity that also belong to the natural phenomena. So let's have a look on this activity also. So this activity you have watched carefully and tell me about these activity. What are these? So students, you have watched two activities. First one, that is the lightning, and second one, that is the tornado. So let's discuss in this chapter what is the basic knowledge that you are going to gain after understanding this chapter. So first one, that is let's see what is the prior knowledge that you have already learned in the class 7. So first term, that is the thunderstorm. I think this term is familiar to you. Second one, that is the cyclone, and third one, that is the tornado. These three activities that also occur in the nature, and these are the example of the natural phenomena. So let's have a look on these phenomena with the help of picture. So students, this is the lightning, means, and second one, this is also the example of lightning. This is also the picture that represent the phenomena of lightning. And this is the cyclone that occur in the water bodies. And this is also the example of cyclone. And one more activity, this is the tornado that you have seen in the video, and this is also one of the most beautiful picture of tornado. So let's discuss these activity one by one and try to understand the natural phenomena. So students, after reading this chapter, you are definitely familiar with the following terms. First one, that is the electric charge and their properties. Second one, method of charging of an object. Third one, detection of the charges. Fourth, phenomena of lightning and earthquake. And fifth one, that is the safety and precautions during the lightning and earthquake. So these are the few topics you can say that you will read in this chapter and comes to know about these all the natural phenomena one by one. So let's start the chapter. सो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर. हमें पता है कि साइंस का मीनिंग ही नेचर होता है. एंड देर आर द मैनी इवेंट्स और फिनोमिनाज दैट टेक प्लेस इन नेचर. दीज फिनोमिनाज आर कॉल्ड नेचुरल फिनोमिना. सो इन फिनोमिनाज को हम कहते हैं नेचुरल फिनोमिनाज, जो कि नेचर के अंदर होते हैं. द सम नेचुरल फिनोमिनाज कैन कोज मास डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ द लाइफ. सो बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनाज ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है हमें, चाहे वो लाइफ का हो चाहे वो मटेरियल का हो. दे आर कॉल्ड इट नेचुरल डिज़ास्टर्स. तो उन्हें हम कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर. जिन ऐसे नेचुरल फिनोमिना या ऐसे नेचुरल इवेंट्स जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक, फ्लड. These are the few examples of natural disasters. So let's see. They have shown you two pictures. First picture represent the lightning and second picture represent the earthquake. It is important to learn about the natural phenomena and more importantly about those that can cause destruction on a large scale. हमें नेचुरल फिनोमिनास के बारे में जानना ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि उनकी वजह से जो हमें लॉस होता है वो कैसा है, या फिर आप उससे कैसे बच सकते हो.
If there is an understanding of these phenomena, one can measures to prevent loss of the life and properties. अगर आपको इन नेचुरल फिनोमिना के बारे में पता होगा तो आप अपनी प्रॉपर्टीज़ या जो भी आपके सराउंडिंग में मैटर है, मटेरियल है, उन्हें बचा सकते हो, लाइफ को बचा सकते हो, लोगों को बचा सकते हो. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू बेसिक नेचुरल डिजास्टर. फर्स्ट वन दैट इज द lightning and second one that is the earthquake. So let's see what is the lightning as well as what is the earthquake and how do you prevent yourself by these two natural phenomena. So first of all, let's see few important terms that you can read in this chapter. First one that is the charge. So what do you mean by the charge? So charge is the fundamental quantity ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी की फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी कह सकते हो, यानी कि इसी की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो करती है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो अबाउट द चार्ज एंड हाउ चार्जेस इंटरेक्ट. इलेक्ट्रिसिटी आपको चार्जेस के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि जो चार्जेस होते हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं. सेकेंडली इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स द स्टडी ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस. आपके पास सपोज करो जो चार्जेस हैं, हमारे पास बेसिकली टू टाइप के चार्जेस होते हैं. फर्स्ट वन दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड नेक्स्ट वन दैट इज़ द नेगेटिव चार्ज. सो इन दोनों चार्जेस के बीच में किस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या किस तरह से फोर्स अप्लाई होता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक. नेक्स्ट वन दैट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट. क्या होता है? दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि जो चार्जेस मूव करते हैं उन्हें हम साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. सो दिस इज़ द फ्यू टर्म्स दैट यू हैव टू रीड आउट इन दिस चैप्टर. सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आपके पास आता है दैट इज़ द न्यूट्रल. हम ये जानते हैं जो चार्जेस है टू प्लस एंड नेगेटिव चार्ज होता है आपके पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पर जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो, इट मीन्स सपोज करो आपके पास 10 पॉजिटिव हैं और 10 ही नेगेटिव हैं, अगर इनका नंबर सेम होता है तो उस सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर इस टाइम इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज नहीं है, बेशक उसके पास 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव चार्जेस हो. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इट इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट is can be seen or that can be observed in the matters. जो भी आपके पास मैटर्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम चार्ज कहते हैं. सो आपको ये एक्टिविटी दी गई है, आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे और परफॉर्म करने के बाद इससे रिलेटेड जो वीडियो आप बनाओगे वो आपको मुझे सेंड करनी है. सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द चार्जेस. नेक्स्ट वन दैट इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती हैं वो हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड नेक्स्ट वन दैट इज़ द नेगेटिव चार्ज. सो यूनिवर्स के अंदर बेसिकली टू टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. एंड पॉजिटिव अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और नेगेटिव अगर चार्जेस अपोजिट हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इट मीन्स अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है. द एटम विच इज़ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर हैज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड electron. Atoms are neutral because the number of electrons and the number of protons are equal. It means जो हमारे सराउंडिंग में जितना भी मैटर है, जितने भी मटेरियल हैं, उनकी जो बेसिक या जो स्टार्टिंग यूनिट होती है उसे हम कहते हैं एटम्स. जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक लाइफ यूनिट होती है उसे हम कहते हैं सेल. सेम वैसे ही जो नॉन लिविंग मटेरियल है, हमारे आसपास जो भी मैटर है उसकी जो बेसिक यूनिट है या उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे हम कहते हैं एटम. एटम का जो न्यूक्लियस होती है, यानी कि एटम का जो सेंटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसे हम कहते हैं प्रोटॉन,
और एटम के सराउंडिंग में इस तरह के स्फेरिकल या आप कह सकते हो सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, या फिर कह सकते हो नेगेटिव चार्ज मूव करता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। सो एटम क्या है आपके पास? फंडामेंटल यूनिट ब्लॉक ऑफ मैटर। एंड प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। एटम नेचुरली अगर आप उन्हें देखोगे तो वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि अगर किसी एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इट मीन्स उसके पास 10 प्रोटॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इट मीन्स इनके जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, और नेचुरली जो एटम्स होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर हम किसी भी तरह का चार्ज नहीं मानते हैं। व्हेन एन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो उस टाइम क्या है, आपके एटम के ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ज़्यादा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो एटम थे उसके पास 10 प्रोटॉन थे, यानी कि 10 पॉजिटिव चार्ज हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन से, इट मीन्स 10 नेगेटिव चार्ज है। अगर आपके एटम ने सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपके एटम के पास 9 नेगेटिव चार्ज है एंड 10 पॉजिटिव है। इट मीन्स इन दोनों में से कौन सा चार्ज ग्रेटर हुआ? पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली, क्योंकि इसके पास 10 पॉजिटिव है एंड 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स अब आपके एटम को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं कहेंगे, इस केस में हम एटम पर कहेंगे कि एटम जो है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज का नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज। सेम ऐसे ही होगा जिसने अगर आपका एटम है जिसके पास 10 प्रोटॉन थे और 10 ही इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या है, अगर आपके एटम ने सपोज करो किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, इनकी एक नेगेटिव चार्ज उसने अपने ऊपर और ले लिया, उस केस में क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 11, यानी कि आपके एटम के ऊपर चार्ज आ चुका है अब 11, यानी कि नेगेटिव चार्ज का नंबर 1 बढ़ चुका है, और पॉजिटिव कितने आपके पास 10। इट मीन्स उस केस में आपके एटम के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज माना जाएगा, ओवरऑल चार्ज उस पर नेगेटिव मानेंगे हम। सो जब एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उस केस में हम कहते हैं कैटायन, और जब एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है तो हम एटम को बोलते हैं एनायन। सो जो अगर आपके एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो आप उसे बोलोगे कैटायन पार्टिकल, और जब आपके एटम के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो हम उसे बोलेंगे एनायन। सो रिमेंबर दीज टू टर्म्स केयरफुली।